سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ذرائع پیشہ افراد اور ان کے سہولت کاروں کے گرد شکنجہ سخت، پولیس میں کالی بھیڑوں کے خلاف سخت ایکشن، 6 SHOs معطل کر دیے گئے، 3 افسر ملازمت سے برطرف، راجہ خالد، انسپکٹر جاوید، سابق SHO پیرآباد مختار پنور بھی برطرف کر دیے گئے ہیں۔ انسپکٹر انیس شیخ، وقار قیصر، ہدایت خان، وقار عظیم، امتیاز زیدی، محمد ریاض شامل ہیں۔ آرگنائزڈ کرائم چلانے پر ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ تھانوں میں پرائیویٹ پولیس پارٹیز چلانے کا بھی انکشاف، معطل SHOs کو CPO رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑے شہر کے بڑے مسائل حل کے لیے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ DIG ٹریفک کا ہر مہینے 23 زندگیاں بچانے کا دعویٰ۔ پیر محمد شاہ نے 16 ویلر ٹرالر کو کراچی کی ٹریفک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ بولے شہر میں 70% گاڑیاں سڑکوں پر چلنے کے قابل نہیں۔ کراچی ٹرانسپورٹ سلگتے مسائل اور ان کا حل کے عنوان سے تقریب، سینئر صحافی مظہر عباس، رہنما جماعت اسلامی محمد فاروق بھی شریک ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی پونم سفر، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی عبدالرؤف فاروقی کا شہر میں بسوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ۔ آپ کو بتائیں شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کے مسائل حل نہ ہو سکے، گھنٹوں بجلی غائب رہنے لگی۔ ملیر حاجی شیر محمد گوڈ میں 20 سے 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باعث معمولات زندگی متاثر۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بل دیتے ہیں لیکن پھر بھی بجلی نہیں، جبکہ ٹاؤن چیئرمین سارا ملبہ عوام پر گرا دیا، بولے عوام بل نہیں دیتے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کے مسائل حل نہ ہو سکے، مختلف علاقوں میں طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ۔ ملیر حاجی شبیر محمد گوٹ میں بجلی کی طویل بندش نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ علاقے میں روزانہ 20 سے 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے پورا دن اندھیرے میں گزارنا پڑتا ہے۔ تقریباً کافی حد تک بھی متاثر ہو رہے ہیں، یا بجلی نہ ہونے کے برابر ہے پر کوئی ایکشن لیتا نہیں ہے۔ دوسری جانب بجلی کی بندش کے باعث کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہونے لگی۔ ہیئر ڈریسر، درزی اور دیگر چھوٹے کاروبار بند ہونے کے قریب۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کے باعث روزگار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ اپنے جو کام ہے جو الیکٹریسٹی سے کرتے ہیں، ہیئر ڈریسر ہو گیا اور دیگر اس طریقے کے جو بھی کام ہو گئے، وہ کر ہی نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں۔ ٹاؤن چیئرمین جان محمد نے سارا ملبہ عوام پر ڈال دیا، بولے بل ادا نہیں کرتے، بجلی بھی مہنگی ہے، ہم مسئلہ حل کرنے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ جن ایونیو پر ناقص منصوبہ بندی کے تحت شروع کیا جانے والا ترقیاتی کام شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ ماڈل موڑ سے ملیر ہال روڈ تک صبح سے شام تک بدترین ٹریفک جام معمول بن گیا ہے، جس سے ہزاروں افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ناقص منصوبہ بندی کے باعث ترقیاتی کام وبال جان بن گیا۔ نیشنل ہائی وے کو سپر ہائی وے سے ملانے والا جناح ایونیو روڈ پر ٹریفک جام معمول۔ سڑک پر سیوریج لائنوں اور کے الیکٹرک کی تنصیبات بچھانے کے لیے کی گئی کھدائی نے ٹریفک نظام درہم برہم کر دیا۔ دفتری اوقات میں جاری کام اور متبادل راستے کی عدم موجودگی کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ پچھلے کافی مہینوں سے جو ہے یہ پہلے سیوریج کی لائن کے لیے کھدائی ہوئی، ابھی چند روز پہلے KE نے کھدائی شروع کی ہے۔ تو میری یہ حکومت بالا سے اور جو اپنا متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ لوگ یہ کھدائی جلد از جلد کریں، کیونکہ یہ پورا ملیر، اس کے بعد ملیر کینٹ کی عوام ہو گئی، سپر ہائی وے والی ہو گئی، لنک روڈ ہے، ماڈل کالونی، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ دفاتر، اسکول اور اسپتال جانے والے شہری گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، جبکہ ایمبولینس اور ریسکیو گاڑیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ پورا مہینہ ہو گیا سر، بہت تکلیف ہے عوام کو، اور ہمارا گاڑی کا یہ حال ہے سر، مہینے میں کم سے کم 50,000 روپے گاڑی پہ لگتا ہے۔ ٹریفک پورا جام ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا یہ کام جو ہے رات کو ہونا چاہیے تاکہ ٹریفک کا تسلسل جو خراب نہ ہو، لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور کام کی روانگی بھی رہے اپنی جگہ۔ شہری بولے یہ مصروف ترین سڑک ہے، دن کے اوقات میں کام کرنے سے ٹریفک جام ہوتا ہے، ترقیاتی کام رات میں کیا جانا چاہیے، جبکہ متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ ترقیاتی کام کے دوران متبادل راستے فراہم کیے جائیں۔ کیمرامین حارث کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر قائد میں پارکس کی ابتر صورتحال، لانڈھی 1 نمبر میں قائم خواجہ غریب نواز پارک تباہی کی داستان سنانے لگا۔ پارک میں بینچز اور فاؤنٹین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پارک نشہ کرنے والوں کی آنچ کا بن گیا۔ رہائشی کہتے ہیں کہ پارک میں گھاس تک نہیں ہے،
देखते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कराची में पार्कों की हालत जार तब्दील ना की जा सकी। लाडी नंबर 1 में कायम ख्वाजा गरीब नवाज पार्क तफरीह नहीं बल्कि तबाही की तस्वीर बन गया। पार्क जो कभी बच्चों और खानदानों की तफरीह का मरकज था, आज मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। रिहायशियों का कहना है कि पार्क गुज़िश्ता 8 साल से तबाह हाल है। नशा करने वालों ने पार्क को अपनी अमाजगाह बना लिया। पार्क में झूले, बेंचेस और दीगर सहूलियात खत्म हो चुकी हैं। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं। बैठने के लिए भी बेंचेस नहीं, फाउंटेन भी बंद पड़ा है। इसकी तमाम ये बेंचेस भी लगी हुई थी, इस पे कलर वगैरह भी होता था और ये घास वगैरह लगी हुई थी, तमाम पौधे वगैरह। माली, इसके अंदर 4 माली भी अलाट हैं, मगर उसके बावजूद कोई भी नहीं आता, ना चौकीदार आता है ना माली आता है। हम यही बोलेंगे ये ठीक हो जाए पार्क, यहाँ हमें को तकलीफ होती है, फैमिली आती नहीं है। लांडी के मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से पार्क की हालत तब्दील करने का मुतालबा किया है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदादी दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। इस ऐलान के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें अदालत ने सिंध हुकूमत की जानिब से जमा कराए गए जवाब की कॉपी दरख्वास्त गुजारों के वकला को फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। निमो गोट नाला मुतासरीन को मुतबादिल फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त आईनी बेंच ने चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी से धोखाधड़ी और फ्रॉड से 3.5 लाख रुपए हथियाने की इंक्वायरी। शर्की की अदालत ने FIA साइबर क्राइम सर्कल के इंस्पेक्टर को तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA इंस्पेक्टर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। KDA रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदम अदायगी। KDA की जानिब से अबूरी अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। आईनी बेंच ने KDA रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को DG KDA व दीगर के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफसरान को तलब कर लिया। नकीबुल्लाह कत्ल केस, साबिक SSP मलीर राव अनवर व दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलें। अदालत ने अपील कुनंदा के वकील जिब्रान नासिर की अदम हाजिरी पर समाअत 5 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते और दहशतगर्दी के लिए टेरर फाइनेंसिंग केस, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान शाहिद, माजिद और शहजाद की जमानत मंजूर कर ली। शहरी अब्दुल हमीद की बाजियाबी से मुताबिक नई दरख्वास्त। आईनी बेंच ने IG सिंध, CTD और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद का केस, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट व दीगर की जानिब से तहरीरी जवाब जमा न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क दिए कि जब किसी और मामले में कानून साजी करनी होती तो कोई ताखीर नहीं करते, यहाँ जवाब जमा नहीं कराया जा रहा। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कारोबारी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज़ भी मंदी। कारोबार के इख्तिताम पर मंदी। 100 इंडेक्स 1113 पॉइंट्स कम हो गया। इंडेक्स 1,81,456 पॉइंट्स पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान के साथ कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम 100 इंडेक्स 1113 पॉइंट्स की नुमाया कमी के बाद 1,81,456 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह 1,83,717 और कम तरीन सतह 1,80,783 को छुआ। माहिरीन के मुताबिक मुनाफे के हुसूल के लिए फरोख्त के दबाव और ईरान अमेरिका के शीदगी के बायस मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। ये अब देखें, ये ईरान और जो अमेरिका का जो क्लैश हो रहा है, इसकी वजह से दुनिया की मार्केटें भी नीचे जा रही हैं। जैसे इंडिया है, भूटान है, ये दूसरी मार्केटें जो है नीचे जा रही हैं, तो इसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी पड़ रहा है। इसी वजह से मार्केट अप डाउन हो रही है। सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जबकि जियो पॉलिटिकल गैर यकीनी सूरत हाल सरमायाकारी के माहौल पर मनफी असर डाल रही है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। माली साल 2025 में मुकामी तौर पर तैयारशुदा गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में 159% का बड़ा इजाफा। इस अरसे में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स वसूली 13 अरब 30 करोड़ रुपए से बढ़कर 34 अरब 60 करोड़ रुपए रही। माली साल 2025 में तमाम मुकामी फरोख्त पर सेल्स टैक्स वसूली 32% से ज़्यादा इजाफे से 1620 अरब रुपए रही। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा कौमी खजाने को बड़ा फायदा। माली साल 2025 में मुकामी तौर पर तैयार शुदा गाड़ियों पर सेल टैक्स में 159% का बड़ा इजाफा हुआ। FDR की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 25 में गाड़ियों पर सेल टैक्स वसूली 13 अरब 30 करोड़ रुपए से बढ़कर 34 अरब 60 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई। FDR का कहना है कि माली साल 25 में मुकामी फरोख्त पर मजमूई सेल टैक्स वसूली में 32.40% इजाफे से 1,670 अरब 70 करोड़ रुपए रहा।
माली साल 25 में शुगर सेक्टर से सेल टैक्स 27.70% बढ़कर 124 अरब 80 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। माहरीन का कहना है कि मशीनरी, रेफ्रिजरेटर पार्ट्स, मोटरसाइकिल की फरोख्त बढ़ने से भी सेल टैक्स वसूली बढ़ी। साथ ही माली साल 25 में एफबीआर ने रिफंड और रिबेट की मद में 404 अरब 40 करोड़ रुपए वापस भी किए। माहरीन की राय है कि गाड़ियों की मुकामी फरोख्त में इजाफा सार्फिन की बेहतर होते एतमाद की अक्कासी है। अशरफ खान, सिटी 21। अभी आपको अपडेट करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर बरकरार है। अपडेट करें आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। बैरून मुल्क जाने वालों को प्रोटेक्ट्रेट पर एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का ऐलान। चौधरी सालिक ने सनतकारों को आइंदा EOBI के नोटिस जारी न होने की यकीन दहानी भी करवा दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कि वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का दौरा काटी, सनतकारों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने सनतकारों और ताजिर बरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वाज़े किया कि काटी से मुंसलिक सनतकारों को आइंदा EOBI से मुताल्लिक किसी भी किस्म के नोटिस जारी, मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को खुशखबरी भी सुनाई और कहा जिन अफराद पर प्रोटेक्ट्रेट लगा होगा उन्हें एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाएगा। 60 साल से ज़ायद उम्र के वो अफराद जिन्होंने फॉर्म जमा करा दिए हैं उन्हें EOBI कार्ड जारी किए जाएंगे। वो पाकिस्तान से बाहर कभी हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में एक एज रिस्ट्रिक्शन कि 35 साल से कम उम्र खातून जो है वो पाकिस्तान से बाहर काम करने नहीं जा सकती। तो वो अलहमदुलिल्लाह अपने पिछले 2-3 महीने काफ़ी भाग दौड़ करके तो वो हम ब्रैकेट 35 से 25 पे ले आए। तो उससे ये है कि एक तो मेड्स भी और उसके अलावा भी कई और अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी हमारी फीमेल वर्कर्स के। साबिक सदर कोरंगी एसोसिएशन मसूद नकी ने EOBI के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इसलिए पॉलिसियों पर नज़रसानी ज़रूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सूबों के दरमियान तनाज़ात ख़त्म हो चुके हैं तो हर सूबे के लिए EOBI का कंट्रीब्यूशन अलग क्यों है। पार्टी ने EOBI में यकसा पॉलिसी, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और इदारा जाती डिसिप्लिन की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जामिया कराची शोबे कंप्यूटर साइंस के ज़ेर तमाम सालाना कैरियर फेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तलबा ने अपनी किस्मत आजमाई और मुख्तलिफ कंपनियों से रहनुमाई हासिल की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। रोजगार और इंटर्नशिप के मौके एक छत तले दस्तयाब। कैरियर फीस्ट में तलबा ने अपनी किस्मत आजमाई। जामिया कराची के शोबा UBIT में 2026 के सालाना कैरियर फीस्ट का इनेकाद किया गया। चेयरमैन शोबा UBIT प्रोफेसर सादिक अली खान ने बताया कि फीस्ट में 25 से ज़ायद मकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के स्टॉल्स मौजूद थे, जहां तलबा को कंपनियों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप के मौके के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कैरियर फेस्ट एक सालाना एक्टिविटी है जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हर साल ऑर्गेनाइज़ करती है, और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और नेशनल कंपनीज़ हैं, कोई 25 के करीब जो है कंपनीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपने स्टॉल प्लेस किए हैं, और जिसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ भी है, फिनटेक कंपनीज़ भी हैं और डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्यूटर साइंस का जो ग्रेजुएट है, हमारा जॉब प्लेसमेंट जो रेशो है वो 90% है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा फाइनल ईयर का 90% बच्चा जो है वो जॉब पर होता है। तलबा का कहना था कि कैरियर फीस्ट के जरिए उन्हें एक छत तले रोजगार और इंटर्नशिप के मौके दस्तयाब हुए जो उनके कैरियर के लिए खुश आइंद है।
तमाम बच्चों के लिए जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो आना चाहते हैं फील्ड के अंदर, उनके लिए ना सिर्फ इसको एक्सप्लोर करना, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस को देखना बहुत ज़रूरी है, उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी। तो मुझे लगता है एक्सपोजर मिलता है, कंपनीज़ के बारे में पता चलता है, कौन से टैक्स चल रहे हैं, क्या मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है, तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है। इवन अगर आप अप्लाई नहीं भी कर रहे तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमेशा से बहुत ज़रूरी है करियर फेस्ट, क्योंकि वैसी जॉब्स की बहुत कमी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मार्केट में, तो इस वजह से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर के लिए करियर फेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। कैरियर फीस्ट में वाइस चांसलर जामिया कराची और दीगर असातिज़ा भी शरीक हुए, जिन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की और फीस्ट की अहमियत पर रोशनी डाली। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ जुबैर राशिद, सिटी 21। एक ही छत के नीचे ज़िंदगी की हर ज़रूरत की दुनिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में चेज़ अप के मेगा स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। CEO सलमान बशीर कहते हैं कि पाकिस्तान में शॉपिंग का रुझान तेज़ी से तब्दील हो रहा है। अपडेट करें आपको, एक ही छत के नीचे ज़िंदगी की हर ज़रूरत की दुनिया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में चेज़ अप के मेगा स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। CEO सलमान बशीर कहते हैं कि पाकिस्तान में शॉपिंग का रुझान तेज़ी से तब्दील हो रहा है। सार्फिन अब कम वक्त में एक ही छत तले अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। खाने पीने की अशिया, मुख्तलिफ फैशन की ज्वेलरी हो या मलबूसात, बच्चा पार्टी के खिलौने भी एक जगह, सब एक छत तले, वो भी रियायती कीमत पर दस्तयाब। नॉर्थ नाज़िमाबाद खेड़िए चौरंगी पर चेज़ अप के मेगा स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मौके पर चेज़ अप स्टोर के CEO सलमान बशीर ने बताया कि पाकिस्तान में शॉपिंग का रुझान तेजी से तब्दील हो रहा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में चेज़ अप के मेगा स्टोर के कयाम ने सार्फिन की जिंदगी आसान बना दी है। शहर में इस वक्त चेज़ अप की 13 ब्रांचेस कामयाबी से काम कर रही हैं, जबकि अनकरीब पूरे मुल्क में चेज़ अप के मजीद स्टोर्स कायम करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जी, मजीद एक्सपेंशन प्लान इंशाल्लाह हमारा पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है फिलहाल के तौर पे, और आप देखेंगे कि मजीद आने वाले महीनों में दीगर शहरों में भी हमारा एक्सपेंशन होगा, और कराची के अंदर भी इंशाल्लाह जैसे ही कोई मौका मिलता है तो हम एक्सपेंड करेंगे। इस मौके पर चेज़ अप के डायरेक्टर जवाद बशीर का कहना था कि हुकूमत और मुताल्लिका इदारों को मकामी तिजारत और सनती शोबे को फरोग देने के लिए आसान कारोबारी माहौल फराहम करने की जरूरत है। आप ये देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं आ रही, लेकिन हम यही हमारी गवर्नमेंट को हम ये कहते हैं कि आप जितने लोकल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप पुश करें, आप उनको उनका साथ दें, उनके लिए आसानी पैदा करें, जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ये जितना होगा यहाँ पर तो उतना हमारा लोकल बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा, और यही चीज एक अच्छी बाहर भी ये जो है वो पैगाम देती है, मैसेज देती है। चेज़ अप के नुमाइंदों ने बताया कि नॉर्थ नाज़िमाबाद का मेगा स्टोर जदीद शॉपिंग के तकाज़ों से हम आहंग है, जो सार्फिन को बेहतर सहूलियात, मयारी मसनूआत और मुनासिब कीमतों के साथ खरीदारी का नया तजुर्बा फराहम करेगा। ख़वातीन की सेहत और फलाह बहबूद का फ़रोग़। पाकिस्तान में विमेंस हेल्थी वेट डे आज मनाया जा रहा है। ये दिन वज़न कम करने के दबाव के बजाय मुतवाज़िन और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने का पैगाम देता है। माहिरीन के मुताबिक सेहत का ताल्लुक सिर्फ वज़न से नहीं बल्कि अच्छी ग़ज़ा, मुनासिब वर्जिश, ज़हनी सुकून और बेहतर नींद से है। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख की इस रिपोर्ट में। मुतवाज़िन ग़ज़ा खाएँ और सेहतमंद बन जाएँ। विमेंस हेल्दी वेट डे पर हर साल जनवरी के तीसरे हफ्ते की जुमेरात को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ख़वातीन में जिस्मानी साख्त को कबूल करने और सेहतमंद आदात को फ़रोग़ देना है। माहिरीन का कहना है कि सख्त डाइटिंग वक्ती फ़ायदा दे सकती है, मगर देरपा सेहत के लिए मुतवाज़िन खुराक और बाकायदा वर्जिश नागुज़ीर है। फिटनेस ट्रेनर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ख़वातीन को खुद पर गैर ज़रूरी दबाव डालने के बजाय सेहत को तरजीह देने का मशवरा देते हैं। फिटनेस ट्रेनर कैरोलिन और बुशरा ईमान कहती हैं ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने जिस्म को कबूल करें और गैर ज़रूरी डाइटिंग से गुरेज करें। रोज़ाना की बुनियाद पर वॉक, स्ट्रेचिंग या हल्की फुल्की वर्जिश भी सेहत के लिए बहुत मौसर है। फिटनेस का मतलब सिर्फ वज़न कम करना नहीं है, बल्कि ख़ुद को तवाना और फ़ाल रखना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लॉन्गजेविटी के लिए, कि आगे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे जाके आपके काम आएगा। जिम ऐसी जगह नहीं है कि मोटे को पतला किया जाता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत गलत है। तवानाई या स्ट्रेंथ या सेहत, जिम का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मोटा बंदा जिम जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कि कैरोलिन ने कहा बहुत ज़रूरी है किसी भी खातून के लिए। न्यूट्रिशन डॉक्टर कहते हैं कि सेहतमंद वज़न बरकरार रखने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा इंतहाई ज़रूरी है। डाइट में सब्जियां, फल, प्रोटीन और मुनासिब मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होने चाहिए।
भूख मारने या फास्ट डाइटिंग के बजाय सेहतमंद खाने की आदत अपनाएं। यही देरपा सेहत की जमानत है। डेली वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट को मेंटेन करने के लिए। आधे घंटे की वॉक करें। जंक फूड सबसे पहले बंद कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ एक रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है जंक फूड का, ख़ास तौर से वीकेंड्स पे लोग बाहर खाना खाने को प्रेफर करते हैं। तो बाहर की ग़िज़ाएँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये बंद कर दें और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल यानी हेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन हेल्दी होंगी तो हमारा माशरा हेल्दी होगा। माहिरीन का कहना है कि सेहतमंद जिंदगी किसी एक दिन का नहीं बल्कि रोज़मर्रा आदत का नतीजा होती है। विमेंस हेल्दी वेट डे ख़वातीन को ये पैगाम देता है कि खूबसूरती का असल मयार सेहत और ख़ुद एतमादी है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ अख्सा शेख, सिटी 21। गुलशन इकबाल सदीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलसुफ़ा अकेडमी स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स डे का शानदार मेला मुनक़िद किया गया। तलबा की बड़ी तादाद ने जोश व खरोश से शिरकत की और मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतें दिखाई हैं। वाइस प्रिंसिपल समीर अहमद ने कहा कि तालीम के साथ खेल बच्चों के मुतवाज़िन नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। अलसुफ़ा अकेडमी स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स डे। तलबा ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबलों में हिस्सा लिया। रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बच्चों की जिस्मानी फिटनेस, नज़्म ज़ब्त और खेलों की महारतें दीदनी थीं। मुख्तलिफ टैबलोज, मुनज़्ज़म प्रेजेंटेशंस और खेलों ने तकरीब को मजीद पुरकशिश बना दिया। स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समीर का कहना था कि स्कूल की सतह पर खेलों के प्रोग्राम का इनेकाद बहुत जरूरी है। वालिदैन को चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ बच्चों को खेलों में भी सपोर्ट करें। यही बच्चे आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज में जो स्पोर्ट्स है वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बच्चों की मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे तालीमी मैदान में उतनी अच्छे अंदाज से एनर्जी के साथ, एक एंथुसियाज्म के साथ, एक पैट्रियोटिज्म के साथ, एक एनर्जी और मोटिवेशन के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी एकेडमिक एजुकेशन के साथ उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रखें ताकि बच्चे मेंटली और फिजिकली फिट रहें। स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेने वाले तलबा का कहना था कि हमने आज के दिन को खूब एंजॉय किया। फ्लैग रेस में लिया और 250 मीटर सिंपल रेस में लिया, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने हिस्सा लिया है फ्रॉग रेस में, बलून बर्स्ट रेस में और टैग ऑफ वॉर में। एंजॉय में कर रहे हैं। अलसुफ़ा स्कूल अकेडमी की जानिब से मुनक्किद किया गया ये स्पोर्ट्स डे न सिर्फ बच्चों बल्कि वालिदैन के लिए भी खुशगवार याद बन गया। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया तलबा में इनामात और असनाद तकसीम की गई। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 21।